what has been done is only the candidature minus was either accepted or rejected, nothing more than that. That is a part of it. 24th September, which recorded in a lot of 8th October. Yes. Around 3 million is only a decision on the candidature. Right. The tentative examinations which the Lordship has recorded in the order of. No, but you see the process itself is once you start the process. हम डिटेल में उस वीडियो को इलेबोरेट करेंगे हिंदी में। इससे पहले वीडियो शुरू मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक का पास प्रो का एक शानदार ऑफर है पास महापर्व सेल के तहत 29 से 31 अक्टूबर के बीच आपको ये सेल मिल रहा है। ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स का जो दाम 2000 था उसको घटा के 439 रुपया कर दिया गया है और ईयरली पास प्रो का जो दाम 1799 था उसको घटा के 351 कर दिया गया है। ई कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा, 12% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे रैंकर टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं, 10,000 प्लस स्टडी नोट्स मिल जाते हैं और जो भी क्वेश्चन में आप फंसते हैं उसका आप फोटो खींच के इस पर डाल दीजिएगा, आपको तुरंत इंस्टेंट सोल्यूशन मिल जाएगा और सिमिलर क्वेश्चन भी जनरेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी अनलिमिटेड है, तो आप जरूर परचेज कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। So that's what I'm asking you today. Yes. Tentative examination which is there. The Lordship order is already record this, and that is the tentative examination subject to the outcome. And we come back if it would be after 2 weeks or 3 weeks. Personally, we will sorry about the report. No order of this honorable court would be valid. But there is a recent development has been occurred by the respondent yesterday night, my lord. They have reflected in the website of the one of the RRC that the examination date has been finalized, and that is well, earlier there was presumption that it will start from from this to that date, but now they have clarified the final date that is. So their intent is well, to conduct the examination. There is nothing new in this. There is, my lord. Lord, kindly go through the which has been already reflected in the order sheet, my lord, that the date of examination from this date to December 25. But now the date has been clarified that it will be up to 31st of December 25. Their intent is, my lord. Yesterday, my lord. But your affidavit that you placed on record is totally contrary to what you're committing now. And lord, this they now, I would, as I said, I didn't want to embarrass you. The officers, the administration was involved. Process would go on, appointments would not be intended for. Therefore, sorry about this, nothing in violation of this. So you can start a process, you can get people involved, get their interests also involved, then you say that it will subject to the outcome. Then further 10,000 litigation will develop. How unfair is that? Now, your lordship has already passed the order of 18th September. But then how unfair is that? Once you've given a statement that no steps will be taken, then you call for some because, as I said, the delegate the advice which was communicated was. No, but then today, problem which is all right, today, all right, but your affidavit today is totally contrary to what you're saying. Either you file a fresh, we file a response to this, we will come back on this. But we assure your lordship, no order of this court would be violated. The lordship is kindly perform. All right, you say that. तो अभी तक आपने जो वीडियो में सुना, आप लोग बहुत सारे लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या जज साहब कहना चाह रहे थे और रेलवे के जो वकील हैं वो क्या कहना चाह रहे थे और आपके जो वकील हैं वो क्या कहना चाह रहे थे। लेकिन फिर भी एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले रेलवे के वकील ही बोल रहे थे कि सर हमने जो किया है वो एक प्रकार से रिक्रूटमेंट तो है ही नहीं, हम तो प्रोसेस कर रहे हैं कि ऐसे अगर हम अगर रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि हम फाइनल ज्वाइनिंग करा रहे हैं, वैसा तो कुछ करा नहीं रहे हैं। हमने सिर्फ स्क्रूटनी प्रोसेस किया कि कौन से बच्चे इसमें एलिजिबल हैं, यानी कि फॉर्म रिजेक्ट हुआ, एक्सेप्ट हुआ। तो जो आपके वकील साहब यानी कि बच्चों के वकील साहब ने कहा कि ये तो पार्ट है, यानी कि रिक्रूटमेंट का पार्ट है और जज साहब भी इस बात से एग्री करते हैं कि ये रिक्रूटमेंट का पार्ट है। फिर जो आपके वकील हैं यानी कि जो रेलवे के वकील को काउंटर करते हुए ITI बच्चे के जो वकील हैं वो कहते हैं कि सर इन्होंने कल परसों भुवनेश्वर के वेबसाइट पे डाल दिया कि हम आपका जो एग्ज़ाम है 31 दिसंबर तक करवा रहे हैं। ये क्या हुआ? ये भी तो एक पार्ट है कि हम अब निश्चित है कि करवाएंगे ही। तो ये तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, कंटेम्प्ट करते जा रहे हैं। तो फिर रेलवे के वकील जो कहते हैं कि सर ये सब पार्ट है और हम रिक्रूटमेंट नहीं करा रहे हैं, हम किसी को अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं। तो फिर कहते हैं कि जो आप ये जज साहब कहते हैं तो आपने एफिडेविट में जो कहा था उसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं, यानी कि एफिडेविट में कहा है कि ये सब हम
प्रोसेस कर रहे हैं और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि सर हम जो है वो ये अभी हम रिक्रूटमेंट कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो जो जज साहब हैं उनको कहे हैं रेलवे को कि फिर से जो बात आप कह रहे हैं मौखिक तौर पे उनको एफिडेविट में भर के दे दो। ठीक है, ये चीज़ है। और जज साहब ने भी बोला कि देखिए जो आप प्रोसेस कर रहे हैं वो एक रिक्रूटमेंट का पार्ट है, और आज आप कह रहे हैं कि सर हम अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं, कल आप बच्चों का एग्ज़ाम ले लेंगे, उसके बाद सब चीज़ हो जाएगा, बच्चे इन्वॉल्व हो जाएंगे और बाद में आप कहेंगे कि जो कोर्ट का निर्णय है उसके अनुसार हम आपको अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चे तो सफ़र करेंगे। तो आप यहाँ कुछ बोल रहे हैं, प्रोसेस कुछ और कर रहे हैं, बाद में बच्चे सफ़र करेंगे। ठीक है, कल होके कोर्ट का निर्णय कुछ और होता है तो बच्चे तो इन्वॉल्व हो ही जाएंगे ना, बच्चे तो परेशान हो ही जाएंगे ना। तो आप कैसे कर रहे हैं कि हम रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं? तो ये सब मतलब कि टोटली इस बात से एग्री हम भी करते हैं कि जो कल का मैटर हुआ उसमें आईटीआई के जो बच्चे हैं उनका पक्ष हमेशा से जितनी बार भी अभी तक आप कह सकते हैं कि बहस हुई है, हमेशा से मजबूत दिखा है। और आशा है आज 29 तारीख है, कल 30 तारीख होगा और इस चीज़ को कैट भी देखेगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि सब चीज़ लाइव है। ठीक है, आपने भी सुना, तो कैट भी इस चीज़ को देखा होगा। कैट कल मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आउटकम आता है यानी कि फाइनल डिसीजन आता है तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आईटीआई बच्चे के पक्ष में ज़्यादा नज़र आता दिख रहा है। अलग अलग से अगर कुछ इसमें निर्णय आता है यानी कि अगर 10th वाले बच्चे के पक्ष में कोई निर्णय आती है तो मुझे लगता है कि जो आईटीआई वाले बच्चे हैं ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। हालांकि वहाँ से उनको मुँह खानी पड़ी, मुँह इसलिए कि ये तर्कहीन बातें हैं कि आपके जो मैटर है वो ऑलरेडी हाई कोर्ट कैट में चल रहे हैं और आप सुप्रीम कोर्ट आ गए। लेकिन जब अगर कल वहाँ पे उनको मुँह खानी पड़ेगी यानी कि अगर हार हो जाती है आईटीआई वाले बच्चों का तो ऑब्वियस है वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ही, क्योंकि हाई कोर्ट में ऑलरेडी वो गए हुए हैं। ठीक है, तब जाके वहाँ पे हो सकता है कि उनका जो केस है वो एक्सेप्ट भी हो जाए और फाइनली डिले तो होना ही है। अगर कल पक्ष में नहीं आया फैसला आईटीआई वाले बच्चे का तो 100% डिले होगा, और अगर पक्ष में आ गया तो हो सकता है कि 10th वाले बच्चे फिर जाग जाएं। ठीक है, कि उनका हक मारा जा रहा है तो वो कहीं जो है वो सुप्रीम कोर्ट ना चले जाए। तो मैटर ये हुआ कि मैटर अब फंस गया है। ठीक है, आशा करते हैं एग्ज़ाम आपके 17 नवंबर से ही शुरू हो, लेकिन आशा करने से कुछ होगा नहीं क्योंकि दोनों बच्चे छोड़ने वाले तो है नहीं। फाइनली मुझे लग रहा है जहाँ तक कि वो सुप्रीम कोर्ट के ही ऑर्डर से ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाएगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।